Dear students, I'm continuing now. Let's understand. We are on question number 13. What is the time period within which the invoice has to be issued for supply of services? Yes, so it has to be issued within, आपको पूरा 31 to बताना पड़ेगा. It has to be issued within 30 days, and for insurance and banking it has to be issued within 45 days. And continuous supply में invoice कब रेज करना है, तो आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़ेगी. अब जरा KYN करके इस चैप्टर में ये कंसेप्ट कौन से पेज नंबर पे दिया है, जरा मुझे बताओ. कौन से पेज नंबर पे दिया है, जरा मुझे बताओ. Page number 163. Same. What is the time period within which invoice has to be issued in case of continuous supply of goods? ये भी concept कौन से पेज पे दिया है? Continuous supply of goods कौन से पेज पे है? 160. Check करो and then tell me, no? Time of supply of continuous supply of goods कौन से पेज पे है? 164. 164. So continuous supply of goods के केस में कब invoice raise किया जाता है? If you have a due date, on the due date. If you don't have a due date, at the time of payment. If that is also not there, and sometimes your continuous supply जो होता है, नहीं ये गुड्स की बात हो रही है, सॉरी. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की अगर हो तो अगर ड्यू डेट होता है तो ड्यू डेट पे, ड्यू डेट नहीं होता है तो पेमेंट के टाइम, वरना इवेंट के टाइम. अब आएंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम कब रेज किया जाता है, मुझे बताओ. इनवॉइस इनवॉइस कब रेज करते हैं? Yes, so it is done before issue of periodical statement. So when you are going to give a periodical statement, at that time you have to raise the invoice. So you can check here, page 164 पे आप KYN करके देख सकते हो. गुड्स का 163 है, ठीक है, जो भी है आपने बताया पेज नंबर मैंने नोट किया है, एकदम बिगनिंग में दिया हुआ है. Yeah, in case of continuous supply it has to be given before issuance of periodical statement or receipt of each periodical payment. So continuous supply of goods में invoice कब raise होना चाहिए? So this is given on page number 163. So वो question जो पूछा है उसका answer is on page number 163 here. So it is on page number 163. What is the time period within which invoice has to be issued in case of, कितनी बार वही पूछ रहे हैं, in case of supply of continuous supply of services. Now we know यार, due date नहीं तो payment नहीं तो event. What is the time within which invoice, अरे what is the time within which invoice has to be issued where goods are being sent or taken on approval for sale? So it is when at the time of supply or within 6 months of dispatch, whichever is earlier. Is that clear to everybody? Yes. Now nobody is going to ask, but ये आपके लिए है, difference between a tax invoice and bill of supply. ये भी registered supplier होता है, but he is not under composition scheme and not selling exempted goods, so वो tax invoice raise करेगा. बिल ऑफ सप्लाई कौन रेस करेगा? इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ही होता है, लेकिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम में हो सकता है या समटाइम्स नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज ही इज सेलिंग एग्जम्प्टेड गुड्स. BOS का मतलब है बिल ऑफ सप्लाई. बिल ऑफ सप्लाई शुड क्लियरली इंडिकेट ही इज अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू कलेक्ट टैक्स. नॉट टैक्स कॉम्पोनेंट. इनवॉइस पे टैक्स कॉम्पोनेंट होता है, हाँ. बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स कॉम्पोनेंट नहीं होता. ये मैन्युअल या ई इनवॉइसिंग हो सकता है, ये भी मैन्युअल या ई इनवॉइसिंग हो सकता है. अभी रेसिपिएंट को जब टैक्स इनवॉइस मिलेगा ही कैन क्लेम ITC, लेकिन रेसिपिएंट के पास अगर बिल ऑफ सप्लाई होगा तो ही कैन नॉट क्लेम ITC. करेक्ट. सो रेसिपिएंट हियर, प्लीज अंडरस्टैंड, the recipient here can claim ITC, he is admissible, but here he cannot claim ITC. हाँ, बिल के दो काम हो सकते हैं, एक मुझे खर्चा भी बुक करना है, दूसरा मुझे ITC भी लेना है. तो बिल ऑफ सप्लाई में आपको खर्चा बुक कर पाओगे आप, लेकिन आप ITC क्लेम नहीं कर पाओगे. नाउ लेट्स रिवाइज. ये समाप्त करता है पूरे चैप्टर को, इसलिए मैं ये करूँगी, मैंने ये खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. That is input tax credit I am going to do first.
डॉक्यूमेंट्स टू बी इशूड बाय द सप्लायर. देखो सप्लायर कब डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस कौन करता है? व्हेन देयर इज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल, लिखो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल जी और एस, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल जी और एस. सप्लाई ऑफ क्या आया? टैक्सेबल जी और एस. रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस या कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, ये कब रेस करना पड़ता है? when you apply for registration within 30 days and you get a retrospective registration, तब आपको क्या करना पड़ता है? You can raise a revised tax invoice. So you can write here, when supplier applies for registration when supplier applies for registration when supplier applies for registration within 30 days, he gets retrospective registration. He gets retrospective registration. When supplier applies for registration, he gets retrospective registration. Correct? Then he can issue revised tax invoice. Correct ना? तो ये चैप्टर आपके लिए एक पेज में यहाँ पे समअप कर दिया है. जैसे हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सबका एक एक बनाया था, वैसे ही हम इसी चैप्टर के भी सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेज पे आपको समअप कर दिए गए. बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई कौन रेज करता है? कॉम्पोजिशन सप्लायर और सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड जी और एस. करेक्ट है? रिसीट वाउचर कब होता है? हाँ, दिस इज रेज्ड ऑन रिसीविंग और इशूड ऑन रिसीविंग एडवांस पेमेंट. Issued on receiving advance payment. रिफंड वाउचर कब होता है? पहले क्या होता है? एडवांस इज रिसीव्ड, however no supply, एडवांस इज रिसीव्ड हाउएवर नो सप्लाई. फिर क्या करना पड़ता है? देयरफॉर पेमेंट रिफंडेड. तो जब आप पेमेंट रिफंड करोगे, पेमेंट रिफंडेड एंड रिफंड वाउचर प्रीपेड, तो ये टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड वाउचर प्रिपेयर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? डेबिट नोट ऑलरेडी क्या होना चाहिए? टैक्स इनवॉइस होना चाहिए. ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इज देयर, ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इज देयर. और इस टैक्स इनवॉइस में क्या है? हाँ, लेकिन क्या हुआ है? ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इज देयर वेयर लेस अमाउंट हैज बीन चार्ज्ड. ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस इज देयर वेयर लेस अमाउंट इज चार्ज्ड और लेस टैक्स इज चार्ज्ड. तो आपको बढ़ाना है इस अमाउंट को, तो कैसे करोगे? बाय इशूइंग अ डेबिट नोट. डेबिट नोट इज जस्ट लाइक अ इनवॉइस. तो डेबिट नोट रेज करने से अमाउंट बढ़ जाएगी. तो आपने ऑलरेडी लेस अमाउंट चार्ज किया था या लेस टैक्स वाज चार्ज्ड. अंडरस्टूड? क्रेडिट नोट
ऑलरेडी क्या है, टैक्स इनवॉइस इज रेज्ड, already tax invoice is there where more amount or more tax was charged. More amount or more tax was charged. अब इसको कम करना है तो कैसे कम करोगे? By raising a credit note. डिलीवरी चालान कब करना है? When movement of goods takes place without supply of goods of G takes place without supply. 4 सिचुएशंस है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आते होंगे तो आप यहाँ से लिखना चालू कर सकते हो. 1 क्या है? क्वांटिटी इज नॉट नोन, क्वांटिटी ऑफ लाइक गैस इज नॉट नोन. दूसरा, G sent for job work, G goods sent for job work. तीसरा, G sent without supply. And fourth, any goods notified by CBIC. आपको इसी पेज में इन एडिशन अगर आप रिवाइज करते वक्त कुछ लगता है, एक और पेज यहाँ पे स्टेपल करके तो आपके इसी चैप्टर की नोट्स की समरी बना देना प्लीज. इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब रेज होता है? व्हेन यू रेज अ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, व्हेन द सप्लायर सप्लाइज व्हाट? टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स, बट किसको? To, yes, to unregistered recipient. Unregistered spelling. Unregistered recipient. आगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी इशूड बाय रेसिपेंट, ये कब? आरसीएम में. ये कब है? आरसीएम में. टैक्स इनवॉइस, वो कब इनवॉइस रेज करेगा? टैक्स इनवॉइस. रेसिपिएंट, यस, रेसिपिएंट विल इशू टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस when supplier is unregistered. Supplier is unregistered, correct? And unregistered supplier पक्का 9(4) में तो होने ही वाला है, 9(3) में हो सकता है या नहीं हो सकता. पेमेंट वाउचर, recipient will always issue payment voucher under RCM. Recipient will always issue payment voucher under RCM. Right? Is this done? Yes, I'm going to now, at this point, I'm going to start with a new chapter. There's concept 13, for which I'll discuss with you after some time after the class. But right now, of course, it will be there, it will be covered and it will be taught. So we'll be having those lectures after some time. Now I'm going to start with the next important chapter, which is input tax credit. ये chapter आपकी A category में आता है, मतलब 6 chapters जहाँ पे आपका marks का weightage होता है between 50 to 80%. So it is an important chapter. So here let's understand. पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगी, आप समझ के लोगे और उसके बाद ही लिखना चालू करोगे. Till then, nobody will write anything. So I want everybody to sit straight and look straight here, please. How was, but jitna part invoice, debit, credit note kiya, how was that chapter? Very easy. It got summed up also in that one particular page of yours, right? Was it easy? Yes. Now, focus and understand.
डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऑन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये चैप्टर के कुछ हिंट्स याद रखना. कभी भी ये चैप्टर वन गो में मत पढ़ना. Don't try to study this chapter in one go, in one day. No. Do it concept wise. Today I'll learn 3 concepts only. Then I'll learn the other ones because it is not possible to take it. Few concepts, the initial ones are very, very easy. There are some parts in this chapter like concept 5 and 6, which I am going to tell you कि बस इसको ऐसे इतना ही पार्ट लर्न करो, पूरा का पूरा मत लर्न करो. क्यों? आपको समझेगा जब आप हम करेंगे. That time you will understand what I mean by it. Now students, input tax credit is the crux of GST. You know, you are going to get GST में आपको सेट ऑफ मिलने वाला है. इसीलिए तो GST में हमने स्विच ओवर किया. यहाँ पे सीमलेस फ्लो ऑफ सेट ऑफ होने वाला है. सो यू आर गोइंग टू हैव अ सीमलेस फ्लो ऑफ सेट ऑफ. सो अंडर GST व्हाट इज हैपनिंग इज हर पॉइंट पे आपको सेट ऑफ मिलते जाएगा, बिल्कुल मिलते जाएगा. क्या इसके कुछ रूल्स है? हाँ, कुछ रूल्स है. आप ऐसे ही और यूं ही सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते. सो इफ आई वांट टू क्लेम अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई नीड टू सैटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. आई वांट एवरीबडी टू फोकस एंड अंडरस्टैंड. लेट इट स्ट्रेट गो इनटू योर हेड. ये चैप्टर नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है. क्या बोला? ये चैप्टर नॉर्मली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है. आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू दिस इन इनकम टैक्स ऑल्सो. तो जब मैं बोलती हूँ कि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो आपने थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने चाहिए कि मैम अभी सिखाई रही है तो ऐसा करते हैं कि ये चैप्टर हमें डिफिकल्ट ना लगे, या इस चैप्टर के जैसे 6 कंसेप्ट है तो कुछ कंसेप्ट इधर ही क्लास में समझ के खत्म कर दो. सो प्लीज वी कैन डू दैट. इट्स ऑन यू टू डिसाइड. सो फोकस एंड अंडरस्टैंड. Students, I am now telling you some basic concepts of input tax credit. What is exactly? Tell me, how do you calculate GST liability? आप कैसे calculate करते हो? Yes, you calculate output tax minus input tax. Yes, so I do output tax minus input tax, and what I get is your tax liability. ये GST की liability, and you will be paying this to the government. मैं आपको बताती हूँ ये जो टैक्स लायबिलिटी होती है, जैसे कि आपका सेल्स है 10 लाख. क्या है? सेल्स कितना है? 10 लाख. एकदम अंडरस्टैंड करके लो, कंसेप्ट वाइज समझ के लो. पहली 3 कंसेप्ट्स तो बहुत ही इजी है, 3 या 4 जो भी नंबर होगा अभी नहीं पता, बट इनिशियल फ्यू कंसेप्ट्स वेरी वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी. ओके, नाउ आपका सेल्स कितना है? 10 लाख. 18% का टैक्स, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 1,80,000. पता है कैसे समझना होता है? समझ के लेना. कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के मेरे पास 2 तरीके हैं. मेरी लायबिलिटी है कितनी? 180. नाउ मेरा सेल्स 6 लाख का है, परचेजेस 6 लाख का है, सेल्स 10 लाख मैंने बोल दिया. 6 लाख पे 18% निकाल के बताओ कितना आता है? 5 लाख, नो 50, 1,08,000. 1,08,000. Now here I say 1,08,000. तो बचा कितना? 72,000. Now what do I have to understand technically? Technically समझ के लो. Technically I say my GST liability was 180. What was my GST liability? 180. I paid it in 2 ways. You can discharge. Look and listen to the technical terms I'm using. I can discharge my GST liability in 2 ways. One through ITC and the other through cash payment. तो मेरी liability थी 1,80,000. उस 180 में से I took ITC. I paid GST by utilizing ITC. क्या बोलते हैं? I paid GST by utilizing ITC of 1,08,000. And the balance I will pay in cash. And the balance I will pay in cash. मतलब मैंने 1,08,000 का सेट ऑफ लिया और बचा हुआ I will pay it in cash, मतलब चेक से पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये बोलने का तरीका होता है. दिस इज अ टेक्निकल लैंग्वेज. द टेक्निकल लैंग्वेज सेज माय लायबिलिटी इज 1,80,000. आपको ये डे 1 से पता है कैलकुलेशन से, अब इसके टेक्निकल टर्म समझो. माय लायबिलिटी इज 180. हाउ डिड आई डिस्चार्ज माय लायबिलिटी? हाउ डिड आई फुलफिल माय लायबिलिटी? by claiming set off or by utilizing ITC. कितना ITC यूटिलाइज किया आपने? 1,08,000. और कितना पेमेंट कैश से करना पड़ेगा? बचा हुआ आपको कैश में 72,000 पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये एक चीज हुई. अभी ITC जो क्लेम करना होता है, कभी कभी सीधे
से हमें नहीं मिलता, कुछ कंडीशंस होती है। यू नो स्टूडेंट्स, अगर आप पीजीबीपी का चैप्टर लोगे और ये चैप्टर लोगे, इसकी लॉजिक और कंसेप्ट में सिमिलैरिटी है, राइट ना? व्हाट इज द सिमिलैरिटी? मुझे बताओ, पीजीबीपी में मैंने आपको एक बेसिक या क्या लॉजिक सिखाया था कि अगर खर्चा बिजनेस से रिलेटेड होता है तो वो अलाउ होता है, और पर्सनल खर्चा होता है तो वो अलाउ नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये जो इनपुट्स आपने खरीदे, अगर ये बिजनेस के लिए है तो इन इनपुट्स के ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया उसका सेट ऑफ मिलेगा। इनपुट शुड बी फॉर बिजनेस पर्पस। अगर मैंने एसी घर पे खरीदा, क्या आप उस पर डेप्रिसिएशन लेते थे? नहीं। अगर मैंने फर्नीचर घर के लिए खरीदा, क्या आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। मैंने अगर पर्सनल खर्चे के लिए घर के स्टाफ को सैलरी दिया, डोमेस्टिक हेल्प है, जो भी सर्वेंट्स है उनको सैलरी दिया, क्या वो अलाउ होता है बुक्स में? बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल है। लेकिन यही एसी आपने ऑफिस में इंस्टॉल किया, क्लासरूम में इंस्टॉल किया, यही आपने यहाँ स्टाफ की सैलरी दी, सो विल दैट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर? यस, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर। Will that be treated as an expenditure? Yes, it will be treated as an expenditure. Similarly here, अगर मैंने मेरे इनपुट्स, अब हम बात करेंगे पूरा आईटीसी के बारे में। अच्छा, व्हाट इज आईटीसी? आईटीसी इज क्लेमिंग सेट ऑफ। किस चीज का सेट ऑफ मिल रहा है मुझे? किस चीज का मुझे सेट ऑफ मिल रहा है? टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? टैक्सेस पेड ऑन व्हाट? ऑन इनपुट्स। व्हाट आर माय इनपुट्स? माय इनपुट्स आर 3 things. What are my inputs? 3 things. What 3 things? Just inputs, input services and capital goods. What are my inputs? Inputs मतलब raw material, inputs, input services and capital goods. तो तीनों चीजों के इनपुट्स खरीदने के टाइम अगर आपने कोई भी टैक्स का पेमेंट किया होगा तो क्या मैं सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड दिस शुड बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस। अगर मैंने सीए की कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है, ऑडिट फीस, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, इज दैट माय इनपुट सर्विस? यस, इट इज यूज फॉर माय बिजनेस पर्पस। यस, आई कैन वेरी मच क्लेम। उसके ऊपर अगर मैंने जीएसटी पे किया है, मुझे उसका सेट ऑफ मिलेगा। अगर मैंने एसी खरीदा है और उसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, क्या मुझे उसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिकॉज इट इज अ कैपिटल गुड्स। मैंने अगर यही एसी घर पे इंस्टॉल किया और उसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो क्या मुझे उसका सेट ऑफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट बिकम्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। बिकॉज दैट बिकम्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, देन आई कांट क्लेम दैट सेट ऑफ, देन आई कैन नॉट क्लेम दैट सेट ऑफ। सो वॉट एवर, इट्स लाइक बिजनेस एंड प्रोफेशन, लॉजिकल। बिजनेस के लिए यूज करोगे मिलेगा, हाँ प्रोपोर्शनेटली करोगे तो हम प्रोपोर्शनेटली अलाउ करेंगे। जैसे हमने कितनी बार डेप्रिसिएशन किया है, कार वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज, यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो हमने भी प्रोपोर्शनेटली, इधर भी प्रोपोर्शनेटली करेंगे। अगर कोई भी इनपुट्स आपने कुछ पर्सनल और कुछ बिजनेस के लिए के, तो प्रोपोर्शनेट। ये अलग बात है, ये स्पेशल केसेस है। बाद में, पहले मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, फोकस ऑन नॉर्मल थिंग्स first, focus on normal things. So I must have taken all these inputs for what purpose? For business purpose. I must have taken all these inputs for what purpose? For business purpose. So it is necessary that my inputs are taken for business purpose. So focus and understand. Now मुझे कौन से taxes का set off मिलेगा? Pay attention. मुझे कौन से taxes का set off मिलेगा? Can I get set off of taxes paid? CGST अगर पे किया होगा तो हाँ. If I have paid SGST तो उसका set off मिलेगा, बिल्कुल. If I have paid IGST उसका set off मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा. I have paid taxes under RCM. इस सेंटेंस का पहले मुझे मीनिंग चाहिए. I have paid टैक्स अंडर, आई हैव पेड, मेरी बात सुनो, समझ के लो 2 मिनट. आई हैव पेड टैक्स अंडर RCM 93. तो ये इनपुट है. पहले तो आप समझो कि ये इनपुट की बात हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है. आउटपुट पे मेरी लायबिलिटी आ गई, मैं लायबिलिटी की अभी बात कर ही नहीं रही हूँ. आउटपुट मतलब मेरे सेल्स पे लायबिलिटी कैलकुलेट होती है. मेरा जो सेल्स है उस पे हम क्या निकालेंगे? लायबिलिटी. अब मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी लायबिलिटी फिक्स हो गई है 180. अब मुझे ढूंढना है कौन से टैक्सेस है जिसका मैं सेट ऑफ ले सकती हूँ. कौन से टैक्सेस? इनपुट टैक्स. ओ ये कौन से टैक्सेस होते हैं? इनपुट, इनसाइड, तुम्हारे फैक्ट्री में, ऑफिस में अंदर क्या आ रहा है, कौन सी सर्विसेज आ रही है.
आप किसकी सर्विसेज ले रहे हो? ऑडिट की सर्विसेज ले रहे हो, उसका स्टाफ आ रहा है, उधर काम कर रहा है, आपके यहाँ इनपुट सर्विस है वो। आपने मशीनरी खरीदा, वो इनपुट है। आपके यहाँ कुछ कंज्यूमेबल आ गया, आपके ऑफिस में पेंट्री है, कॉफी पाउडर आ गया, कुछ और आ गया, तो ये सब क्या है? स्टेशनरी आ गई प्रिंटिंग के लिए, दीज आर ऑल इनपुट्स। नाउ लिसन टू दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। आई हैव पेड टैक्स अंडर RCM 9(3). मतलब टेक एन एग्जाम्पल, 2 मिनट सोचो कि 9(3) में कौन सी सर्विसेज आती है। एक आधा एग्जाम्पल बोलो, लीगल सर्विसेज। सो आई हैव पेड टैक्स ऑन लीगल सर्विसेज। ओ, आई हैव पेड टैक्स अंडर RCM ऑन लीगल सर्विसेज। मतलब इस लीगल सर्विसेज आर इनपुट्स और आर दे माई आउटपुट्स? दे आर माई इनपुट्स। सो इनपुट पे हर जो टैक्स आप पे करोगे उसका सेट ऑफ मिलेगा, भले ही वो RCM में हो। सुनो, ये मैंने पहले भी समझा है। ऑडिट की फीस, ऑडिट फीस ये RCM में आता है क्या? कुछ भी? अयो, ऑडिट फीस RCM में आता है? इस बिल का आप एंट्री क्या करोगे? ये आपका क्या है? आपको बिल मिला, मैंने बिल दिया ऑडिट का, आपका कोई बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है आपका? बिजनेस। तो मैंने बिल दिया आपको, क्या करोगे इस बिल का? किधर रिकॉर्ड करोगे? PNL में? पक्का? ऑडिट फीस किधर जाएगा? PNL में। तो ऑडिट फीस PNL में जाएगा। क्या अमाउंट से PNL में जाएगा? 1 लाख। फिर ये 18,000 किधर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आप बैंक से पे कितना करोगे? 1,18,000। ऑडिटर को दोगे कितना? 1,18,000। 1 लाख आपका क्या होगा? खर्चा, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? PNL में। 18,000 आपका क्या है? सेट ऑफ क्लेम करोगे। ये 18,000 क्या है? आपका इनपुट टैक्स है। तो मैंने एंट्री ऐसी करनी है, ऑडिट फीस 1 लाख सॉरी टैक्सेस। अभी मैं एक ही एंट्री करती हूँ फास्टर जाने के लिए, नहीं तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट सेपरेटली, C और S अलग अलग करना पड़ता है। टैक्सेस 18,000, टू PKD 1,18,000, देन PKD 1,18,000 टू बैंक कितना? 1,18,000 बरोबर। ये 18,000 मेरा इनपुट टैक्स है। क्यों? बिकॉज ये मेरी इनपुट सर्विस है। डू आई प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज? तुम्हारा बिजनेस है, मैंने तुम्हारे लिए ऑडिट किया है, तुम्हारे लिए ऑडिट किया, तुमको सर्विस दिया है, ये तुम्हारा क्या है? इनपुट है। इट इज योर इनपुट सर्विस। ऑल टैक्सेस पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, ये एलिजिबल कर दिया। अब मैंने लीगल फीस ली, कितना बिल है? इधर नहीं, विल टेक इट फ्रॉम सम एडवोकेट, एडवोकेट की लीगल फीस। यहाँ पे नोट आएगा, टैक्स कवर्ड अंडर RCM। मैंने तुरंत लॉयर को 1 लाख का चेक दे दिया। अब और क्या होगा? ये RCM में कवर्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एंट्री बताओ जरा। हाँ, मैं एडवोकेट को कितना दूंगी? 1 लाख। हाँ, तो लुक सुनो, लीगल फीस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एडवोकेट। इधर ही मुझे GST भी रिकॉर्ड कर दूँ? चलो करती हूँ। इनपुट टैक्स कितना? 18,000 टू एडवोकेट कितना? सिर्फ 1 लाख। एंड आई मे पे दिस टू बैंक, कर देंगे 18,000। अब जब एडवोकेट को पेमेंट करोगे, एडवोकेट का 1 लाख टू बैंक 1 लाख। ऊपर की ऑडिट फीस में भी मेरा आउटफ्लो 1,18,000 है। ऑडिट फीस के टाइम भी मेरा आउटफ्लो कितना हुआ?
1/18, लेकिन 1/18 मैंने पूरा किसको दे दिया, पीकेडी को, तो आई विल टेक 18 एंड आई विल पे टू द गवर्नमेंट, पीकेडी विल टेक 18 एंड पे टू द गवर्नमेंट। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं लीगल फीस की, आई विल पे एडवोकेट 1 लाख एंड 18,000 मैंने टू बैंक बोला बिकॉज आई हैव पेड दिस टू द गवर्नमेंट, लेकिन है तो मेरा इनपुट वाला ही टैक्स, क्योंकि लीगल फीस क्या है, इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस पे पेड टैक्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स। ये भी मैंने 18,000 मेरी जेब से पे किया, ऑडिट फी वाला भी 18,000 मेरी जेब से ही पे किया, तो क्यों मुझे दोनों का सेट ऑफ नहीं मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। अरे मैंने जेब से पे किया यार, सिर्फ एक जगह मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया और एक जगह मैंने पीकेडी को दिया और पीकेडी ने गवर्नमेंट को दिया। एक जगह मैंने डायरेक्टली लीगल फीस गवर्नमेंट को क्यों दिया, क्योंकि वो आरसीएम में कवर्ड था, अगर आरसीएम में नहीं होता तो मैं एडवोकेट को देती 1/18 और वो जाके गवर्नमेंट को पे करता। हो कुछ भी, गवर्नमेंट को ऐसे दो या ऐसे दो, दिया तो है ना तुमने, 18,000 तो मेरी जेब से गया ना, तो मुझे क्यों नहीं सेट ऑफ मिलेगा, वो भी मेरी इनपुट सर्विस का ही टैक्स है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, जो मैं इतना लंबा आपको स्टोरी बताया सिर्फ एक सेंटेंस समझाने के लिए बताया है कि व्हेन आई पे टैक्सेस अंडर आरसीएम, आई पे टैक्सेस अंडर आरसीएम, दैट मीन्स आई एम पेइंग टैक्सेस ऑन माय inward supplies, my inputs, I am liable to claim ITC. Taxes paid under RCM are eligible for set off. एक तरफ ऑडिट फीस, एक तरफ लीगल फीस। ऑडिटर ने मुझसे 1,18,000 लिया, एडवोकेट ने सिर्फ 1 लाख लिया, तो क्या मैंने सिर्फ 1 लाख दिया? उसी दिन मुझे गवर्नमेंट को 18,000 भी देना पड़ा, आरसीएम में कवर्ड है। दोनों केसेस में मैंने 1/18 ही दिया, 1 लाख खर्चे का, 18,000 टैक्स का। भले ही मैं टैक्स गवर्नमेंट को ऐसे इनडायरेक्टली पहुंचाऊं या ऐसे पहुंचाऊं, है तो मेरा इनपुट टैक्स, मुझे तो सेट ऑफ मिलना ही चाहिए। सो भले आप ऑडिटर आपसे टैक्स कलेक्ट करे या एडवोकेट आपको बोले ये आरसीएम में कवर्ड है, लेकिन है तो मेरी इनपुट। इनपुट टैक्स में क्या क्या कवर्ड होता है? Taxes that I pay on my inputs. Sometimes on my inputs I have to pay taxes under RCM. These taxes are also eligible for set off. These taxes are also eligible for set off. क्या समझा? समझा या नहीं समझा? पक्का? अच्छे से? हाँ, अब तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अब सुनो। किधर गया? इधर। अब मैंने क्या आपको बताया कि मेरे इनपुट्स क्या क्या है। अब हम फोकस सिर्फ कर रहे हैं इनपुट टैक्स के ऊपर। किस पे फोकस कर रहे हैं? सबने यहाँ ध्यान देना है। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? इनपुट टैक्स के ऊपर। इनपुट टैक्स में हमें क्या समझना है? इनपुट टैक्स में हमें ये समझना है कि इनपुट्स के ऊपर जो टैक्सेस पे किए उसका सेट ऑफ मिलेगा। मेरे इनपुट्स क्या क्या फॉर्म के हो सकते हैं? इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। जल्दी, माय इनपुट्स कैन बी और व्हाट टाइप? इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स। इधर ही क्लास में लर्न करो, लाउड एंड क्लियर एवरीबॉडी, कम ऑन। पहला इनपुट्स, दूसरा इनपुट सर्विस, तीसरा इनपुट कैपिटल गुड्स। दीज आर माय इनपुट्स। इनपुट टैक्स इज टैक्स ऑन इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब इनपुट्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। और टैक्सेस का मतलब भले वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, और टैक्सेस पेड अंडर आरसीएम। 93 वाला हो, 94 वाला हो, 53 वाला हो, 54 वाला हो। मतलब आईजीएसटी का आरसीएम, आईजीएसटी का 53 वाला, आईजीएसटी का 54 वाला, सीजीएसटी का 93 वाला, सीजीएसटी का 94 वाला। ये सब मिला के क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। इतना ही नहीं, कभी कभी आई मस्ट हैव पेड आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स ऑल्सो। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे हम क्या टैक्सेस पे करते हैं? बीसीडी प्लस आईजीएसटी। क्या ये वाला आईजीएसटी भी सेट ऑफ के लिए मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने गुड्स इंडिया के बाहर से खरीदे, गुड्स तो अंदर ही आए, इनपुट्स ही है, मेरी फैक्ट्री के अंदर है वो गुड्स, सिर्फ कहाँ से आए? इंडिया के बाहर से। तो इन गुड्स के ऊपर मैंने कौन सा टैक्स पे किया? आईजीएसटी प्लस बीसीडी। बीसीडी कस्टम्स का सेट ऑफ नहीं मिलता, लेकिन किसका मिलेगा? आईजीएसटी का। अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्राई एंड विजुअलाइज स्टूडेंट्स, व्हाट इज कमिंग इन इज माय इनपुट्स, व्हाट गोज आउट। गवर्नमेंट पेज अ वॉच। क्या जा रहा है तेरी फैक्ट्री के बाहर? गुड जा रहा है, बेचा, चलो टैक्स कलेक्ट करके दे दो। गवर्नमेंट तुम्हारे सेल्स पे फोकस करती है और तुम गवर्नमेंट को बोलते हैं हाँ सेल्स पे भी करो फोकस, बट मैंने खरीदते वक्त ऑलरेडी तुमको टैक्सेस दे दिए। मुझे दिए? हाँ, मुझसे सप्लायर ने लिए और सप्लायर ने तुमको ही दिए, तुम ही को दिए मैंने टैक्सेस। दो सेट ऑफ,
गवर्नमेंट बोलते चलो दे देंगे सेट ऑफ. इनपुट टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स. बरोबर? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन इनपुट टैक्सेस का मुझे सेट ऑफ कब मिलता है? कब मिलता है? जब ये मैं बिजनेस के लिए यूज करती हूँ, व्हेन आई यूज देम फॉर माय बिजनेस. करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक टेबल बनाया मैंने जो हम लिखेंगे. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट आईटीसी. अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया. आई एम जस्ट टीचिंग यू सम बेसिक कंसेप्ट, सो इट्स इजी फॉर मी टू टीच यू दिस चैप्टर. हियर हु कैन क्लेम आईटीसी? लिखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन. हु कैन क्लेम आईटीसी? लिखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन. कौन सा पेज नंबर है नोट्स का? पेज 2. Yes, so please open page 252 of your notes and let's start writing. Who can claim ITC? A registered person other than composition taxpayer. क्यों रे? composition taxpayer को अलाउड है क्या आईटीसी लेना? हाँ, अदर देन कॉम्पोजिशन नहीं, कलेक्ट भी नहीं, और वो खुद ले सकता है क्या आईटीसी? नहीं. सो हु कैन क्लेम आईटीसी? एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, यस, अदर देन कॉम्पोजिशन सप्लायर टैक्स पेयर. आपको किस चीज का आईटीसी मिलेगा? यू विल गेट आईटीसी ऑफ व्हाट? इनपुट टैक्सेस. यू विल गेट आईटीसी. आप सेट ऑफ किसका ले सकते हो? इनपुट टैक्सेस. इनपुट टैक्स. वॉट आर योर इनपुट्स और इनवर्ड? आपके इनवर्ड, आपके फैक्ट्री के अंदर क्या क्या आ सकता है? 3 चीजें: इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. दीज आर योर इनवर्ड सप्लाईज. मतलब आप जो खरीदते हो, आप परचेज करते हो. करेक्ट? करेक्ट है क्या? अब देखो आगे, परचेज और इनवर्ड सप्लाईज. देखो ना, अगर मुझे कुछ खरीदना है, स्टूडेंट्स ध्यान देना जरा, मुझे कुछ खरीदना है तो मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ? विद इन द स्टेट. तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट. तो ऐसे एरो करके इंट्रा स्टेट में मैंने खरीदा, तो मैंने कौन सा टैक्स पे किया होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो क्या मुझे इसका सेट ऑफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. आपने इंटर स्टेट परचेज किया तो आईजीएसटी. क्या मुझे इसका सेट ऑफ मिलेगा? आईटीसी. यस, इसका भी मिलेगा. इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स किया तो क्या होगा? बीसीडी प्लस आईजीएसटी. मुझे किसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ, तो यू विल राइट आईटीसी ओनली ऑफ आईजीएसटी. बीसीडी को क्रॉस, उसका सेट ऑफ नहीं मिलता. बीसीडी का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. ना इनपुट टैक्स मतलब क्या? इनपुट टैक्स मतलब क्या? ना अंडरस्टैंड. इनपुट टैक्स मीन्स इट कुड बी सीजीएसटी, इट कुड बी एसजीएसटी, इट कुड बी यूटीजीएसटी, it could be IGST, plus it could be, आप CGST प्लस SGST पे कर सकते हो अंडर RCM. कौन सा? 9394. and you may pay IGST also under RCM which is 5354. ये हुआ आपका इनपुट टैक्स. देखो, इनपुट्स में सिर्फ एक इनपुट नहीं है, 3 इनपुट्स है. और टैक्सेस में भी सिर्फ एक टैक्स नहीं है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वर्ड इनपुट एंड टैक्स. टैक्सेस पेड ऑन माय इनपुट्स. इनपुट क्या क्या है? मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, सर्विसेज है. और टैक्सेस क्या क्या है? सी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, यूटीजीएसटी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, कभी कभी आरसीएम वाला टैक्स भी हो सकता है. आरसीएम इज ऑल्सो टैक्स ऑन माय इनवर्ड ओनली. Input tax excludes taxes under composition scheme. Correct?
What are eligible inputs? All inputs used for business purpose. All inputs used for business purpose except blocked credit. All inputs used for business except blocked credit. मतलब सारे इनपुट जो बिजनेस के लिए यूज करोगे क्या उसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ, उसका आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं. आई कैन वेरी मच क्लेम द आईटीसी. नाउ वेट, ये आईटीसी क्लेम करने के लिए कुछ रूल्स है क्या? यस, देयर आर रूल्स. वही तो हम सीखने वाले. देयर आर रूल्स. देयर आर रूल्स. देयर आर रूल्स लिखो पहले. देयर आर रूल्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी. There are rules and conditions for claiming ITC. कुछ रूल्स है, ऐसे ही नहीं मिलेगा. हाँ, सारे इनपुट्स विच आर यूज फॉर बिजनेस पर्पस उनका मिलेगा. हाँ मिलेगा, सब्जेक्ट टू यू सेटिस्फाई सम रूल्स. सो इफ यू सेटिस्फाई सम रूल्स एंड कंडीशंस यू कैन क्लेम ITC. You cannot claim ITC on some inputs. So some inputs are not eligible for ITC. So ऐसे जो inputs ITC के लिए eligible नहीं है उनको बोला जाता है blocked credit. उनको क्या बोला जाता है? blocked credit. ये blocked credit की list is given to us under section 17 subsection 5. Under section 17 subsection 5. अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. मैंने रफली आपको बताया कि मैं आपको चैप्टर में अभी क्या क्या सिखाने वाली हूँ. मैं आपको चैप्टर में सिखाने वाली हूँ कि क्या रूल्स और कंडीशंस फॉलो करने पे आईटीसी मिलेगा, कौन से टैक्सेस का आईटीसी मिलेगा. कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. क्या ऐसे कुछ गुड्स है जिनको ब्लॉक कर दिया है, मतलब उनके गुड्स के खरीदने पे आप खरीदो, टैक्सेस पे करो, लेकिन हम आईटीसी नहीं देंगे? हाँ, कुछ गुड्स है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम प्रोडक्ट्स, some inputs जिसके ऊपर आपको सेट ऑफ नहीं मिलता है, and these are called as blocked credit. I can claim ITC on all goods that are used for my business purpose except what? Blocked credit. Except blocked credit. Generally you should know, अगर supplier only exempted goods बेचता है, only exempted goods, मतलब वो only exempted goods बेचेगा तो क्या गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा? मैचिंग प्रिंसिपल. तुम्हारे सेल्स पे तुम टैक्स नहीं दे रहे तो तुम्हारे परचेजेस के जो टैक्सेस है उसका सेट ऑफ तुमको नहीं मिलेगा. सो नो आईटीसी एट ऑल. स्टूडेंट्स ये इजी है और ये वाला इजी है. थर्ड सिचुएशन में प्रॉब्लम आता है. देखो, एक सिचुएशन में तुम सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स देते हो, बच गए. मैचिंग प्रिंसिपल. तुम्हारे गुड्स कौन से? एग्जम्प्टेड. तुम टैक्स पे करते हो क्या? गवर्नमेंट को नहीं, मतलब तुमको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा. दूसरा, तुम सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बेचते हो. क्या गुड्स बेचते हो? सिर्फ टैक्सेबल. अच्छी बात है, सारे इनपुट्स का सेट ऑफ लेके जाओ एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट का सेट ऑफ किसी को भी नहीं मिलता. अगर तुम सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बेचते हो तो सारा का सारा सेट ऑफ ले लो, तुम्हारे जो इनपुट्स है. हमेशा सोचो इस चैप्टर को डिफिकल्ट क्यों लगता है स्टूडेंट्स को. इसमें एक एंगल नहीं है. आउटपुट के बारे में बात किया तो लायबिलिटी, गवर्नमेंट को कलेक्ट करके देना है. इनपुट के बारे में बात किया, तुम्हारा खर्चा, तुमने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है. गवर्नमेंट को बोलना मैं वापस नहीं पे करूंगा, मैंने परचेस करते वक्त थोड़ा सा टैक्स दिया है, उस थोड़े से अमाउंट का मुझे सेट ऑफ दे दो. अब प्रॉब्लम किधर आता है? व्हेन आई एम सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड, तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. अच्छा, टैक्सेबल गुड्स वाला आईटीसी कौन सा है? उतना ही सेट ऑफ मिलेगा. जो एग्जम्प्ट वाला है उतना नहीं मिलेगा. तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट. तो मैं आपको इस चैप्टर में ये सारे रूल सिखाने वाली हूँ. मैं आपको रूल्स और कंडीशन सिखाऊंगी. मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से ब्लॉक क्रेडिट है. मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आधा टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जम्प्ट है तो उसको प्रोपोर्शनेटली कैसे बाइफर्केट करते हैं. एंड सम स्पेशल केसेस ऑफ आईटीसी ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न. समझ में आ रहा है इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले? हाँ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड one or two simple definitions. Already you know capital goods, ये learn करना है. कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन लर्न करना है.
Capital goods means goods the value of which is capitalized in the books. So what is the meaning of capital goods? What page are we on? 2. Yeah, so you're on page 250. So you're on page 250 of my notes. Capital goods means goods which have been capitalized in the books. कितना easy definition है. अरे thank God it's a very easy definition. Earlier excise था, earlier VAT था, सब कुछ था, वहाँ पे capital goods की definition बहुत complicated होती थी. अब उन्होंने बहुत simplify कर दिया. What is capital goods? Goods that are capitalized in the books. तो बुक्स की मीनिंग से सेम कर दिया. इनकम टैक्स के कैपिटल गुड्स और ये कैपिटल गुड्स आर सेम. जो कैपिटलाइज कर दिया दैट इज कैपिटल गुड्स. व्हाट आर इनपुट्स? एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स. व्हाट आर इनपुट्स? इनपुट्स कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स. इनपुट्स मतलब सिर्फ मैंने गुड्स खरीदे वो नहीं होते. बेचने के लिए गुड्स खरीदे वो भी इनपुट्स है. फेविकॉल पैकिंग के लिए खरीदा वो भी इनपुट है. एक स्क्रू खरीदा उसके ऊपर जीएसटी किया वो भी इनपुट है. फेविकॉल, पैकिंग मटेरियल, रैपिंग पेपर, कुछ भी मैंने खरीदा जो मैंने कंज्यूम भी किया होगा, कंज्यूमेबल्स भी मेरे इनपुट्स है. whatever comes in, Fevicol comes in, goods come in, screws come in, any small consumable things come in, everything is my input. Inputs are of 3 types. Divide them into capital goods, inputs, just goods matlab, and services. Capital goods are ones that are capitalized. Capitalized को छोड़ के बाकी सब goods बनेंगे inputs, और services will come under the category of services. समझा क्या? Input service is any service which is going to be used by the supplier in the course of business. हाँ, तो ये सारे 1 2 3 4 यहाँ तक तो लर्न करना ही है. मैं आगे देखती हूँ कौन सी डेफिनेशन है. इनपुट टैक्स तो मैंने तुमको डेफिनेशन सिखाई दी है, देख लेते एक बार. इनपुट टैक्स मतलब क्या? इट मीन्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, IGST, UTGST, paid on G or S or both. It includes IGST even charged on imports. ये देखो एक मिनट, तुम्हारा ये वाला पार्ट खोलो, देखते हैं यहाँ पे देखो हमने कवर किया क्या. ये देखो, तो यहाँ पे आप इवन लिख सकते हो IGST ऑन इंपोर्ट्स. देखो क्या क्या इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी कवर किया है, सब यहाँ पे कवर हुआ है. देखो क्या है. इज इट CGST? यस. इज इट SGST? यस. UTGST? यस. IGST ये इंडिया के अंदर वाला है. देन दिस इज IGST ऑन इंपोर्ट्स. देन दिस इज टैक्सेस अंडर RCM. दिस इज IGST अंडर RCM. अब देखते हैं इनपुट टैक्स की डेफिनेशन. क्या हमने सब लिख के लिया? देखते हैं इनपुट टैक्स में क्या क्या कवर होता है. इनपुट टैक्सेस CGST, SGST, IGST on goods or services. Now IGST on imports. IGST किसका? Imports वाला. ये भी आएगा. IGST on imports. Will this also come? Yes. Tax payable under subsection 9394. ये क्या है? RCM. RCM का CGST. Tax paid under 5354. RCM for IGST. And taxes under 9394 of the respective state, मतलब SGST का RCM. तुमको कितने बोला ऐसे ऐसे लिखो, डायरेक्टली लिख सकते. इनपुट टैक्स मीन्स CGST, SGST, IGST, UTGST. It also includes IGST paid under RCM. It also includes CGST paid under RCM. It also includes SGST paid under RCM. Easy. Tax payable under any provisions of union territory का भी आ गया 7374. RCM of UTGST. UTGST का RCM. अयो चलो जल्दी बोलो. अब बोलो डेफिनेशन क्या हो गया इनपुट टैक्स का. CGST, SGST, UTGST, IGST. Full stop. SGST paid under RCM. CGST paid under RCM. IGST paid under RCM. UTGST paid under RCM. All these are input taxes. But what is not an input tax? कॉम्पोजिशन टैक्स. अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर को इनडायरेक्टली कभी कभी वो आपसे टैक्स लेता होगा गुड्स की प्राइस बढ़ा के, वो टैक्स की अमाउंट अलग नहीं दिखाता है, बट कॉम्पोजिशन सप्लायर के साथ जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो वो कभी भी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा. डन. डेफिनेशन लर्न हो गया? हुआ कि नहीं? हाँ. Input tax credit means taking credit of input tax. What is input tax credit? Taking credit of input tax.
Inward supply. What is inward supply? Receipt of goods or services. What is inward supply? Receipt, अंदर आ रहा है. Outward is your selling, you're giving it out. Inward is coming in, you're receiving goods and you're receiving services. Motor vehicles. It means any mechanically propelled vehicle adopted for use upon roads. ठीक है हाँ, but does not include पे focus करते. It does not include vehicle on fixed rails, मतलब railways नहीं. Or a vehicle of special type adopted for use in a factory or enclosed premises, or vehicle having less than 4 wheels fitted with engine capacity of not exceeding 35 cubic centimeters, cubic meters, cubic cc में होता है ना उसका. So 35 cc के yes cubic capacity जो होता है, less than 4 wheels, but उसका cubic capacity कितना होना चाहिए था? 35, not exceeding 35. Do you understand that? Motor vehicles को related बहुत ही डिटेल में हम जाने वाले. 13 सीटर, अबाउट 13 सीटर एंड ऑल दैट स्टफ. सो कुछ ही कंसेप्ट में वो आने वाला है, तो वापस ये डेफिनेशन उधर कवर कर लेंगे. टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? गुड्स जिसके ऊपर टैक्स लेविएबल है. अयो ये 2108 मतलब दिस इज 108th डेफिनेशन. ये देखो 2 सबसेक्शन 108. एक्ट में इतनी नहीं तो डेफिनेशन है. पहले एक्ट खोलो तो सेक्शन 2 के ऐसे डेफिनेशंस और डेफिनेशंस ही चलती जाती है जीएसटी में. तो अब जीरो रेटेड सप्लाई 2-3 स्टार दे दो, वहां पे 2-3 स्टार मार्क डाल दो वहां पे. पहले कर दिया. जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स व्हाट? मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. एक्सपोर्ट्स को जीरो रेटेड माना जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. जीरो रेटेड या सप्लाई टू सेल टू एसईजेड. सो एक्सपोर्ट और सेल टू एसईजेड इसको जीरो रेटेड माना जाता है. क्यों? इसको एक बेनिफिट दिया है, वो तुमको थोड़ी देर में समझेगा. थोड़ी देर में, अभी 10-15 मिनट में समझिए, कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा. पहले जीरो रेटेड सप्लाई म्हणजे काय? म्हणजे काय? लवकर म्हणजे काय? पहले तो एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई टू एसईजेड. एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू एसईजेड इसको क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई. बरोबर. चलो अभी हम चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग जीएसटी. आई एम टीचिंग यू द चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये जो सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 1 में आता है. आप सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हो. आपका एग्जाम है जो 2 नवंबर को May. Your November is over right now. Your exam is in May. So May 2020 we have to write the exam. एग्जाम का भी बहुत टाइम है ना? हाँ. अब हम करने वाले पहले हमारा सिलेबस खत्म. सो हम अभी करेंगे आईटीसी का जो चैप्टर है. मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ा रही हूँ. कुछ रूल्स सेटिस्फाई करने पे आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा. यू विल गेट द क्रेडिट. You get the credit if I satisfy certain conditions. Now pay attention. Listen. मैं आपको अभी कुछ conditions बताऊंगी. Students, now there are certain conditions which I have to satisfy. एकदम ध्यान से और क्लास में लर्न हो जाना चाहिए. ठीक है? There are certain conditions that have to be satisfied if I want to claim ITC. पहला condition. Every registered person shall be entitled to ITC charged on inward supply of goods or services subject to certain conditions. पहले तो ये किसको मिलेगा? Who is eligible? Who will get ITC? Every registered person. अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ITC बिल्कुल भी क्लेम कर सकते हो. क्यों? मैचिंग कंसेप्ट. आप रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी. ये टैक्स लेते वक्त आपको ITC मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा और फिर बचा हुआ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. हाँ. ITC is available on goods and services. कौन सी goods and services which are used for business? Obviously यार, अगर मैं PGBP में भी बिजनेस वाला ही खर्चा होता है तो बिजनेस वाले असेट्स पे अगर GST पे किया है तो हम ITC क्लेम कर सकते हैं. ITC जो होता है, now it is not available
Thus, I tax paid on goods or services which are intended to be used for non-business purpose. Non-business purpose वाला ITC available नहीं होता. Students, ITC जो आप क्लेम करते हो, it is credited to your electronic credit ledger. पता है जीएसटी में गवर्नमेंट आपके नाम के 3 लेजर मेंटेन करती है. गवर्नमेंट अकाउंटिंग करती है आपके लिए, 3 लेजर मेंटेन करती है. एक क्रेडिट लेजर, एक कैश लेजर, एक लायबिलिटी लेजर. गवर्नमेंट बोलते है तुम्हारा लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा इसमें, कैश में तुमने कितना कैश पे किया वो रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट लेजर में तुमने कितना आईटीसी ले रहे तुम वो भी हम रिकॉर्ड करके रखेंगे. तो सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा. प्रॉपर लेजर्स आर मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल. ये लेजर्स की बात मैं आपको इसके अगला जो चैप्टर सिखाऊंगी, पेमेंट ऑफ जीएसटी, उसमें ये लेजर्स, तीनों लेजर्स, वो अगला जो चैप्टर इसके बाद वाला, वो तीनों सिर्फ लेजर्स पे ही बेस्ड चैप्टर है. ओके तो फटाफट, हु कैन गेट आईटीसी? हु कैन गेट आईटीसी? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. On which inputs? Used for business purpose. Okay, if inputs are used for non-business purpose. Very good. Now what are the 4 conditions? 4 conditions satisfy करने पे A, B, C, D, 4 conditions satisfy करने पे हमको क्या मिलेगा? ITC मिलेगा. कितनी conditions satisfy करनी पड़ेगी? 4. So on satisfying 4 conditions, government is going to give you ITC. पहला, you must have possession of a tax paying document. आपके हाथ में टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. मतलब अगर मैंने पांडु को बिल ऑफ सप्लाई दिया तो पांडु तेरा अकाउंटेंट आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? नहीं क्लेम कर सकता है. मैंने अयो बात मत करो. हाँ तो देखो ये मेरे पास अगर कोई इनवॉइस है, मैंने इनवॉइसेस पहले से बनाए थे, इस इनवॉइस के ऊपर आपको दिखेगा नहीं, वर्ड्स लिखे हुए हैं टैक्स इनवॉइस. सो अगर टैक्स इनवॉइस ये वर्ड लिखा हुआ होता है, ये जो इनवॉइस है इसमें टैक्स का अमाउंट अलग से दिखाया जाता है. इसके पेमेंट पे अगर ये पांडु आता है, मेरे से गुड्स लेता है, पैसे देता है और ये बिल लेके जाएगा. आजा, मैं नाम, मुझे पेन स्केच पेन दे दो, मैं नाम चेंज कर दूं. मैंने यहाँ गयाराम दयाराम के बनाए थे. आजा, स्केच पेन देना. स्केच पेन चाहिए यार. अरे मार्कर नहीं है क्या किसी के पास? हाइलाइटर, मार्कर, अच्छा कुछ तो होना चाहिए ना. हाँ तो मैंने बिल पे नाम क्या लिखूं? पांडु. इज दिस अ टैक्स इनवॉइस? हाँ तो देख पांडु, कितने अमाउंट का बिल लेके जा रहा है तू? 1 लाख का. और नो 1,18,000. सुनो अब सुनो ना, मैं पांडु को बोलती हूँ ये लो गुड्स, मैंने उसको कुछ गुड्स दे दिए. हाँ गुड्स तुम्हारे ट्रक में आ गए, ठीक है. और सुनो, तुमको बिल दे दिया 1,18,000 का, तुम पेमेंट कब करोगे? तुम बोलो मैं क्रेडिट पीरियड है क्या? पूछो. क्रेडिट पीरियड है क्या? हाँ है. तो पांडु बोलता है कोई क्रेडिट पीरियड है क्या? मैंने बोला हाँ क्रेडिट पीरियड है. हाँ अब अकाउंटेंट तू इधर आ जा. जल्दी आना अकाउंटेंट, जल्दी आ. एक मिनट आजा, थोड़ा इधर आ जा, उसको जगह. हाँ अब सुनो, आई नीचे उतर. कितना लंबा है तू? हाँ कितना लंबा है? अब सुनो, पांडु क्या करेगा? ये बिल दे दिया मैंने उसको, बरोबर. हाँ अकाउंटेंट को दे. हाँ अकाउंटेंट तू टीवी में नहीं आ रहे, अंदर आ. अब देखो अकाउंटेंट जो है, सुनो ना, मैंने पांडु को बिल दिया, पांडु ने किसको दे दिया? अकाउंटेंट. अभी अकाउंटेंट तू इसका क्या एंट्री करने वाला है? ये तेरा खर्चा है और 18,000 का टैक्स है, इसका क्या क्लेम करेगा? आईटीसी. हाँ तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेगा, इसका आईटीसी क्लेम करेगा. सपोज ये अकाउंटेंट अभी घर जाते जाते रास्ते में सो गया. और सुनो, ये घर जाते जाते सो गया और ये बिल जो है उसके हाथ से गिर गया. अभी इसने 18,000 का रिकॉर्ड तो कर दिया और 18,000 का भी इसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. अगर उसके पास ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा. आईटीसी पांडु उसका सैलरी पेमेंट मत करना. हाँ अब सुनो, हाँ फीस. हाँ
नहीं नहीं, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही इज चार्जिंग फीस। हाँ तो वो प्रोफेशनल फी उसकी कम नेक्स्ट टाइम से आनी। तो उसके पास एक आइडिया है, वो बहुत होशियार बच्चा है। तो वो क्या बोलता है, वी विल कॉल फॉर अ डुप्लीकेट इनवॉइस। तो वो डुप्लीकेट इनवॉइस मंगाएगा और उस बेसिस पे अभी वो सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा। तो तुम ये इनवॉइस लेके जाओ, मैं चेक का वेट कर रही हूँ, ठीक है? चेक बना के फिर आ जाना। जाओ अभी बैठो, जाओ। वो बिल रख तेरे पास, मुझे और काम है, मैं बुलाने वाली हूँ वापस। हाँ सुनो अभी आगे। पहला कंडीशन, स्टोरी सुनो। पहला कंडीशन है यू शुड हैव पोजेशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। नाउ व्हाट इज अ टैक्स पेइंग? नाउ लिसन, क्वाइट। What is a tax paying document? A tax paying document could be what I gave him, a tax invoice. हाँ, पांडु ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, उसके ऊपर भी टैक्स पे किया, अब उसका टैक्स पेइंग, सी अंडरस्टैंड, योर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स कुड ऑल्सो बी अ डेबिट नोट। समटाइम्स में डेबिट नोट, अभी मैंने उसको 1 लाख का बिलिंग किया, मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, उसने बिल कम चार्ज किया, तो मैं उसको पांडु को क्या भेजूंगी? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट पे भी जीएसटी आएगा, तो क्या उसका भी उसको सेट ऑफ मिल सकता है? हाँ। सो एनी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या हो सकते? सो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स कुड बी सर्कल टैक्स इनवॉइस, इट कुड बी अ डेबिट नोट, अ बिल ऑफ एंट्री। व्हाई बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री इज यूज्ड फॉर इंपोर्ट्स। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट्स के लिए होता है। इंपोर्ट्स वाला जो आईजीएसटी होता है उसका भी मुझे सेट ऑफ मिलेगा, तो उसके लिए मेरे पास बिल ऑफ एंट्री रखना चाहिए। तो पांडु ये सारी लिस्ट तुम्हारे अकाउंटेंट को अच्छे से बता दो, उनको भी पता होगी, वो आपको बता देंगे ये डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने चाहिए, तो आप इनको बिल्कुल खोना मत, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अयो रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है पता है क्या तुमको? हाँ, तो वही तो था ना, वो बैकलॉग वाले पीरियड का मैंने टैक्स कलेक्ट किया, रेसिपिएंट उसके बेसिस पे भी आईटीसी ले सकता है। तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस हो, इन सब का मुझे सेट ऑफ मिलेगा। मैंने तो खुद के टैक्सेस पे किए आरसीएम में, उसका भी सेट ऑफ मिलेगा। तो उसके लिए इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट भी चलेगा, या पेमेंट वाउचर, प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो जब रेसिपिएंट अपना पेमेंट वाउचर बनाएगा, आरसीएम वाली सर्विसेज पे भी वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। सो यू मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट खो गया तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। नाउ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन आईटीसीज, the documents based on which ITC is being taken should contain at least the following. And पांडु चेक, तेरे इनवॉइस जो है उसमें ये सारे नाम कंटेंट्स है क्या? चेक करो उस इनवॉइस पे, दोनों चेक करो। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज है क्या? हाँ, तो ही तुमको सेट ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स, जीएसटीआईएन नंबर सप्लायर का, जीएसटीआईएन नंबर रेसिपिएंट का, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई हो तो। ये सारी चीजें आपने चेक करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट पे है, मतलब आपको श्योर शॉट अभी आईटीसी मिल सकता है। ये पहला कंडीशन। क्या है पहला कंडीशन? बिल को खोने मत देना। पहला कंडीशन क्या है? बिल को खोने मत देना। ओके हाँ, अकाउंटेंट को सोने मत देना, बिल को खोने मत देना, ठीक है। चलो अगला, रिसीट। सुनो अगला, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांडु के साथ मैंने ट्रक में गुड्स भेज दिए। हाँ, ट्रक में नाउ सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे रे 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 सुनो। हाँ, मैंने पांडु के यहाँ पे गुड्स भेज दिए, अगर उसको गुड्स मिल गए, ही रिसीव द गुड्स, ही कैन क्लेम सेट ऑफ। अगर आज मैंने सिर्फ बिल दिया, पांडु इधर आ जा बिल, हाँ देखो मैंने उसको बिल दे दिया, लेकिन पांडु बोलता है मैंने उसको गुड्स दिखाए, बोलता है ऐसे गुड्स नहीं चाहिए मुझे। क्या बोलता है? नहीं चाहिए, ठीक है। तो पांडु बोलता है ऐसे गुड्स नहीं चाहिए, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मुझे इस पे काम करना पड़ेगा और 1 महीना भर लगेगा, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा तो पांडु बोलता है चलेगा। तो अब सुनो, उसको बिल आज मिला, लेकिन गुड्स कब मिलेंगे? अगले महीने। बिल कब मिला? आज। गुड्स कब मिलेंगे? अगले महीने। अब उसको सेट ऑफ भी अगले महीने मिलेंगे।
जब गुड्स मिलेंगे तभी सेट ऑफ मिलेगा. गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड. बिल खोना नहीं, गुड्स को रिसीव करना चाहिए. बिल खोना नहीं है, गुड्स को रिसीव करना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिसीव द गुड्स. नाउ इनफैक्ट अगर गुड्स मैंने इसको इंस्टॉलमेंट में भेजे, ये बोलता है अरे ये गुड्स नहीं है क्या, थोड़े तो अभी हमारे साथ भेज दो, मुझे मेरा काम चालू करना है, तो मैंने थोड़े गुड्स अभी भेजे. बिल बनाया 1 लाख का, 25,000 के गुड्स आज दिए, बचे हुए 25,000 के गुड्स अगले महीने दिए, बचे हुए 50,000 के गुड्स तीसरे महीने में दे दिए, तो उसको सेट ऑफ भी तीसरे महीने में मिलेगा. ही विल गेट सेट ऑफ ऑन रिसीट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो अगर तुम्हारा अकाउंटेंट अभी सेट ऑफ ले रहा है तो उसको बोलना अब मत लेना, मुझे गुड्स नहीं मिले. जग रहा है वो अच्छे से. हाँ अब सुनो, सुनो सुनो, हाँ सुनो. आँख खोल के कोई सोता है क्या, कुछ भी बोलता है. हाँ सुनो, I have to receive the goods. So even if you got the invoice, सिर्फ उसके बेसिस पे सेट ऑफ नहीं होगा. goods have to be received, and if you are receiving goods in installment, you will get ITC only on the receipt of the last installment. तो अब जाके ऑफिस में जाना, अकाउंटेंट को बोलना कि बिल आ गया है लेकिन गुड्स अभी तक नहीं आए, तो सेट ऑफ क्लेम नहीं करना. जाओ अकाउंटेंट को बता दो कि सेट ऑफ नहीं लेना है. हाँ बोल दिया क्या अकाउंटेंट को, क्या बोला, सेट ऑफ क्लेम मत करो. जब गुड्स मिलेंगे, अकाउंटेंट को जब गुड्स मिलेंगे, जब गुड्स रिसीव होंगे तो सेट ऑफ करना. अब सुनो, पांडु ऑफिस जाता है, बोलता है अरे सोचता है अभी गुड्स तो आए नहीं, एक काम करते हैं गुड्स अगले महीने आएंगे. तो वो मुझे फोन करके बोलता है कि गुड्स जो है मुझे मेरी ऑफिस में मत भेजना, मेरा कोई कस्टमर है, डायरेक्टली कस्टमर के यहाँ पे भेज दो. तो गुड्स में बी रिसीव्ड बाय पांडु और गुड्स में बी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ पांडु बाय समबडी एल्स. इस मॉडल को, ये जो तरीका होता है, इसको बोलते हैं शिप टू एक्स बिल टू वाई. क्या बोलते हैं, शिप टू एक्स बिल टू वाई. गुड्स का शिपिंग हुआ किधर और बिलिंग हुआ पांडु के पास. गुड्स गए किसी और के पास और बिलिंग हुआ पांडु के पास. इस मॉडल को बोलते हैं शिप टू बिल टू. क्या बोलते हैं, शिप टू बिल टू. तो बिल टू समबडी एल्स, शिप टू समबडी एल्स. चलेगा क्या, चलेगा. तो गुड्स शुड बी रिसीव्ड, and even if it is in ship to bill to model, we will assume the goods have been received. We will assume the goods have been received. तो पांडु ऑफिस जाता है और बोलते हैं अरे मेरा कस्टमर जो है उसी एरिया में है, वहीं पे है, आपके पास में है, तो एक काम करो, एक लॉट जो है या ये कुछ जो गुड्स है डायरेक्टली सेंड इट टू माय कस्टमर. बट बिल किधर जाएगा, पांडु को. सो बिल टू पांडु, शिप टू कस्टमर. बिल टू पांडु, शिप टू कस्टमर. इज दिस मॉडल ऑल्सो अलाउड? यस. नाउ कैन पांडु से, कैन इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर गो एंड टेल पांडु तुम्हारे पास गुड्स नहीं आए तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा? नो, ही कैन से दिस इज अ बिल टू शिप टू मॉडल. कौन सा मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल. शाबाश. पहला कंडीशन बिल, दूसरा गुड्स. बिल होना चाहिए, दूसरा गुड्स भी होने चाहिए. गुड्स शुड बी रिसीव. गुड्स मस्ट बी रिसीव, मैंने रेड में मार्क किया है. गुड्स मस्ट बी रिसीव बाय द रेसिपिएंट or any another person on his direction. Sometimes the goods or services may be received by another person on the direction of the recipient. इस मॉडल को बोलते हैं bill to X, ship to Y model also included. Under this model, the goods are delivered to Y, but the billing is done to X as he is the purchaser. समझा क्या सबको? It would be deemed, bill to ship to model में क्या होगा, it will be deemed. What will be deemed? कि goods have been received by Pandu only. Okay. It would be deemed that X has received the goods in such scenario. So ITC will be available to X on whose order the goods are delivered to the third person. Order किसने दिया goods का? पांडु ने. बिल किसको दिया? पांडु को. goods किसको भेजा? कस्टमर. क्यों? पांडु ने बोला कि ये goods किसको भेजो? कस्टमर को. So this is bill to ship to. Example, registered head office. Pay attention. Registered head office, New Delhi of ABC Private Limited enters into a contract with DEF Private Limited of New Delhi for repair and maintenance of computer system installed at its registered branch office in Bangalore. DEF Private Limited issues an invoice to ABC for services provided by it, though the actual services are received by the branch office. Now please understand, head office ABC है. हेड ऑफिस ने डिसाइड किया कि सारे कंप्यूटर्स का रिपेयर्स हम ही करवाएंगे,
सब एक जगह पे कंप्यूटर्स है, तो हेड ऑफिस ने कॉल किया सप्लायर को, प्लीज हमारी ब्रांच ऑफिस में जाके सर्विस दे दो, ठीक है। पेमेंट हेड ऑफिस करेगा, बिल किसके नाम पे, हेड ऑफिस पे, सर्विस किसको मिला, ब्रांच को। चलता है, चलता है। दिस इज बिल टू शिप टू मॉडल। व्हाट मॉडल, बिल टू शिप टू, बरोबर। तीसरा कंडीशन, टैक्स ऑन सप्लाई शुड एक्चुअली बी पेड टू गवर्नमेंट। अब देखो, टैक्स ऑन सप्लाई शुड एक्चुअली बी पेड टू गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे एग्जाम्पल में पांडु की है या मेरी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। टैक्स शुड एक्चुअली हैव बीन पेड, मैंने टैक्स किससे कलेक्ट किया, पांडु से। ये बात अलग है कि पांडु ने अब तक मुझे चेक नहीं दिया, उससे भी रिलेटेड एक कंसेप्ट है। तो पांडु तुम्हारा चेक रेडी करना, एक पेपर पे लिख के रखना, मैं लेने वाली हूँ वो चेक। सुनो, अब सुनो, अब देखो, पांडु ने मैंने तो बिल दे दिया, मेरा टीओएस अप्लाई हो गया, मैंने आज इशू कर दिया क्या, आई एम अ सप्लायर, फॉरवर्ड चार्ज, मुझे टैक्स पे करना है आज, टीओएस इज इक्वल टू आई डेट, तो आई डेट के हिसाब से आज बिल मैंने बना दिया, राइट। सो बिल बना दिया तो मेरा तो सप्लाई का हो गया, मुझे तो गवर्नमेंट को 18,000 देना पड़ेगा, भले ही पांडु ने मुझे पैसे नहीं दिए, भले ही उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे तो 18,000 गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। मैं अगर 18,000 पे करूंगी तो तब जाके पांडु को सेट ऑफ मिलेगा। सो टैक्स शुड हैव एक्चुअली बीन पेड बाय कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हाउएवर provisional ITC can be taken initially. Now Pandu can do what? Listen. हर बिल का मैचिंग होने वाला है, बिल जो मैं रिकॉर्ड करूंगी और बिल जो पांडु रिकॉर्ड करेगा, हर बिल का, हमारा एक ही बिल है, एक ही इनवॉइस है जो मैंने उसको दिया है, वो भी उसको एंटर करेगा रिटर्न्स में, मैं भी मेरे रिटर्न्स में एंटर करूंगी, दोनों मैच हुआ तो पांडु को सेट ऑफ मिलेगा। बट पोर्टल को ये मैचिंग करने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं मेरा रिटर्न भरूंगी, फिर पांडु अपना रिटर्न भरेगा, फिर दोनों का मैचिंग होगा, पोर्टल काम करेगा, फिर पोर्टल दोनों को नोटिस भेजेगा, फिर मुझे पता चलेगा अच्छा किसी की तो डालते वक्त गलती हो गई, या पांडु को पता चलेगा, फिर वो उसके अकाउंटेंट को, तो ये सारे प्रोसेस में लगभग 2 महीने निकल जाते हैं। कैन मीनवाइल पांडु को गुड्स मिल गए, इनवॉइस आ गया, क्या वो सेट ऑफ ले सकता है? यस, ही कैन क्लेम सेट ऑफ। उसके पास बिल है, तूने रिटर्न भर के तुम्हारा सेट ऑफ ले सकते हो, ही कैन टेक द सेट ऑफ राइट नाउ। आगे मैचिंग नहीं हुआ तो क्या होगा वो आगे बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए कैन ही क्लेम सेट ऑफ? यस, अज्यूमिंग एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, आई हैव पेड माई टैक्सेस, ही कैन क्लेम द आईटीसी, बिल्कुल फिलहाल के लिए यस, ही कैन क्लेम इट। फोर्थ कंडीशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। The registered person taking ITC must have filed his return. पांडु तुमको ITC चाहिए तो तुम तुम्हारा रिटर्न भर के लो। क्या करके लेने का? रिटर्न भरना चाहिए। जो ITC क्लेम कर रहा है, तुमको क्लेम करना है ना, ITC क्लेम करना है ना, तुम्हारा रिटर्न तो भरो, GST का रिटर्न तो भरो, तो मिलेगा ITC। तो ITC मिलने की 4 कंडीशंस क्या है? एक, यू मस्ट हैव द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इन पोजेशन। दूसरा, you must have received the goods or services. It is okay if you receive the goods or services under bill to ship to model. It's okay if you receive the services under bill to ship to model. थर्ड, जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तीसरा, जो रजिस्टर्ड पर्सन पांडु है जिसको आईटीसी क्लेम करना है, उसने अपना रिटर्न भरना चाहिए। अरे वो रिटर्न भरेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना आईटीसी है, इसको सेट ऑफ करने का है, तो तुमने रिटर्न भरना चाहिए। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो क्या होगा? आईटीसी मिलेगा। अब सुनो ना, एग्जाम्पल 1, 1 मिनट। हाँ, A is a trader who places an order on B for consignment of, read the example, read example 1 carefully.
Though the goods are not physically received at the premises of A, can you get ITC of the goods? What? Of course you can get. Bill to ship to model है ये. क्या चल क्या रहा है? A is a trader who places an order on B for consignment of soda ash. A receives a buying order from C for the same quantity. A instructs B. A ने B को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? बिल मुझे भेजो, लेकिन गुड्स. So this is bill to ship to model. So can A claim ITC? Yes. A can claim ITC. लिख दो ऐसे. B is the supplier. Goods C के पास गए, बिल A के पास आया. A can claim ITC because it is assumed A has received the goods under. It is assumed that A has received the goods. It is assumed that A has received the goods. It is assumed that A has received the goods. This is bill to ship to model. Students है क्या कोई? This is bill to, हाँ, this is नहीं, this is bill to ship to model. कौन सा मॉडल है? This is bill to ship to model. A has supplied services. A has supplied services worth 1 lakh to B. A has supplied services worth 1 lakh to B. A is a registered person and has recovered GST at appropriate rate from B. However, A has not issued tax invoice. तो कैन बी क्लेम आईटीसी? बी को टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है, उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं. सो कैन B claim ITC? No, B cannot claim ITC because he does not have tax invoice. पहला condition क्या है? You must be in the possession of the document. हाँ, write down. B cannot claim ITC as he does not have tax invoice. B cannot claim ITC as he does not have tax invoice. Is that clear to everybody? हाँ, पढ़ती हूँ ना. Example 3. A supplies goods to B. A ने क्या किया? ए डन ना? यहाँ तक समझा ना सबको? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, बोल. क्या हुआ उसके पहले में? क्या हुआ? No, then we'll change. No, 1 minute, wait. A is a, no, let's read. A is a trader who places, I'm reading example 1. A is a trader who places an order on B for consignment of soda ash. A receives a buying order from C for the same quantity. A instructs B to deliver the goods to C and in return he raises the bill. अभी कैसा हुआ है? B will raise, correct है. B ने invoice raise किया. B raises an invoice in the name of A and A raises an invoice in the name of B. C. A raises an invoice in the name of C. तो correct है? तो correct ही है ना? And he raises, he का मतलब यहाँ पे A raises. Reading से काफी clear है, no confusion. देखो, मैंने गुड्स किससे खरीदे? बी से. तो बी बिल किसके नाम पे देगा? मेरे नाम पे. मेरा कस्टमर है सी, तो मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट क्या किया बी को कि तुम क्या करो? मैंने रिक्वेस्ट क्या किया बी को कि तुम सिर्फ गुड्स वहां पे भेजो, बिल मेरे पास ही भेजो, मैं तुमको पेमेंट करता हूं. सीधी बात है. दिस इज कॉन्सेप्ट इज मेनली बिल टू शिप टू. सो वेरी सिंपल. बी ने बिल ए को भेजा, फिर ए ने इनवॉइस सी को भेजा. समझा क्या? हाँ. B raises the invoice in the name of A. A raises the invoice in the name of C. Third one. A supplies goods to B. A क्या करता है? A supplies goods to B, issues a tax invoice, collects GST.
A supplier है, but A does not pay GST to the government. Can B claim ITC? No. B cannot claim ITC as the supplier A has not paid GST as the supplier A has not paid GST to the government. समझा क्या? As the supplier A has not paid GST to the government. So what are the following 4 conditions that should be satisfied for claiming ITC? क्या 4 conditions है? 1, आपके पास किस चीज का possession होना चाहिए? Possession of tax paying document. रखा है ना संभाल के? हाँ, तो लिखो पहला possession of tax paying document. Possession of the tax paying document. दूसरा, receipt of G और S. receipt of G और S. कोई exception है क्या कि मुझे गुड्स नहीं मिले किसी और को मिले? कौन सा एक्सेप्शन है आज चलता है वो? बिल टू शिप टू मॉडल अलाउड. तो बिल टू शिप टू मॉडल अलाउड. तीसरा क्या है? हु शुड पे द टैक्स? सप्लायर. सप्लायर शुड पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. चौथा किस पे कंडीशन है? हाँ, किसको? रेसिपिएंट को. हाँ, रेसिपिएंट हु वांट्स टू क्लेम आईटीसी शुड फाइल जीएसटी रिटर्न. यस, रेसिपिएंट हु वांट्स टू क्लेम ITC should file GST returns. Should file GST returns. अगला पार्ट. पहला ये तो मैंने सिखा दिया है. गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स. मतलब क्या रे? इंस्टॉलमेंट में गुड्स कैसे दिए? बिल बनाया एक, आधे गुड्स आज भेजे, आधे कुछ दिनों के बाद अगले महीने में भेजे. तो कब वो सेट ऑफ ले सकता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने पे. व्हेन यू रिसीव द लास्ट इंस्टॉलमेंट. ये एक फेवरेट क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट को, उनको पसंद है. आईटीसी का पूरा चैप्टर ही फेवरेट है. क्या? आईटीसी का पूरा चैप्टर फेवरेट है. एक जगह पे मत मार्क करो इंपॉर्टेंट. नो 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 नो, एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. यस, सो नो मार्किंग हियर. गुड्स आर रिसीव्ड. यस, आईटीसी के चैप्टर के उधर मार्क करो. फेवरेट चैप्टर ऑफ आईसीआई. आईसीआई का फेवरेट चैप्टर है. गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स. अयो बात मत करो. 40 on 40, 40 on 40, 40 on 40. हाँ, टाइम ऑन टाइम. एग्जैक्ट 6 आई लीव यू. एग्जैक्ट 1 मिनट भी लेट नहीं. पक्का. अच्छे बच्चे एकदम. गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स. सुनो ना, गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स. ITC is available on receipt of last installment if the goods are received in lot or installments. इतना ही. एग्जाम्पल देखो उसका. मतलब ITC कब मिलेगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब बिच ITC लेने का. कभी लेने का? तब बिच मतलब कभी. लास्ट इंस्टॉलमेंट. टेक ITC on last installment. Example, XYZ makes an advance payment in August and orders 10 metric tons of a particular chemical which is in short supply. The supplier of the chemical raises a bill for the entire amount. Entire amount का बिल मैंने अगस्त में दे दिया. बिल कब हुआ? अगस्त में. Chemical is delivered in lots. कौन था? आनंद.
Chemical is delivered. Chemical is delivered in lots over a period of 3 months and the supply is completed in November. ITC कब लेने का? November. अच्छे बच्चे लिखो. ITC can be claimed in November. Why in November? Claimed in November on receipt of last installment. ITC to be claimed in November on receipt of last installment. On receipt of last installment. अब पांडु की बारी आई. चेक किधर है पांडु? चेक है क्या? अब मैं पांडु को फोन कर रही हूँ. फोन उठा ही नहीं रहे. पांडु को फोन कर रही हूँ. पांडु मेरा पेमेंट किधर है? अब सुनो. पांडु बिल लेके गया आज. पांडु बिल लेके गया आज. मैंने गुड्स भी दे दिए. पेमेंट दिया ही नहीं. क्या नहीं दिया? पेमेंट दिया ही नहीं. तुमको तुम लोगों का प्रूफ है. देखो वो बिल लेके गया. चेक दिया क्या मुझे? नहीं. अकाउंटेंट बोलता है मेरा फीस भी नहीं दिया. अब सुनो ना. तुम सिचुएशन देखो जरा कि मैंने उसको बिल दे दिया. मैंने बिल आज दे दिया. अगले महीने की 20 तारीख को मेरे को रिटर्न का ड्यू डेट आ गया. अगले महीने की 20 तारीख मैंने मेरी जेब से 18,000 निकल के दे दिया क्योंकि पांडु ने तो पेमेंट किया ही नहीं. मुझे 1,18,000 पांडु से आना था. 18,000 मैंने भर दिया गवर्नमेंट को. फिर मैं फोन लगा रही हूँ. 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 180 डेज खत्म हो गए. पांडु कितने डेज खत्म हो गए? 180 डेज. कितने डेज खत्म हो गए? 180 डेज. अब देखो सुनो. अब मैंने बोला, अब मैंने पांडु को मैसेज डाला. वो फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा. तो मैंने पांडु को मैसेज टाइप किया. सुनो, मैंने उसको मैसेज डाला, यू हैव नॉट डन द पेमेंट, नाउ 180 डेज आर ओवर. Pandu has to sue moto on his own, has to reverse the ITC. This is the law and this is the provision. If government comes to know from your books of accounts, they will see in his books bill has been entered but payment has not been done. Payment is outstanding for more than 180 days. पांडु ने जो 18,000 का ITC लिया वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. तुमने जो ITC 18,000 का लिया वो तुमको रिवर्स करना पड़ेगा. मतलब तुम्हारी 18,000 से लायबिलिटी बढ़ेगी. उसकी 18,000 से लायबिलिटी बढ़ेगी. और अच्छी बात है ये प्रोविजन है यार, बिकॉज मैंने मेरी जेब से पैसे निकाल के दिए और मेरा गुड्स भी चले गए. मुझे पेमेंट भी नहीं आया 6 महीने तक. पांडु को अभी ITC रिवर्स करना पड़ेगा. फिर मैंने रिकवरी एजेंट को भेजा उसके यहाँ. हाँ अब तलवार लेके रिकवरी एजेंट गया उसके पास. हाँ अब सुनो. तो रिकवरी एजेंट जब उसके पास गया, पांडु ने ऑन डोंट कंसेप्ट मिस आउट हो जाएगा प्लीज. पांडु ने एग्जैक्टली आफ्टर 190 डेज, यू नो आई वेटेड 180 डेज 180th डे खत्म होने पे उसके अकाउंटेंट ने उसका ITC रिवर्स करना चाहिए. हाँ, ये गवर्नमेंट को उसने खुद ही बताना चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने उसी पे डाली है कि 180 डेज के बाद अगर अभी भी तुम्हारा पेमेंट बाकी है तो उस बिल का तुम सेट ऑफ नहीं ले सकते. तुम सेट ऑफ ले रहे हो, उस बिल का पेमेंट तो करो यार. तो 180 डेज हो गए, पेमेंट नहीं किया, रिवर्स हो जाएगा. ITC क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. अब पांडु वो रिकवरी एजेंट से डर गया. उसने 190th डे को मुझे चेक भेज दिया. मुझे चेक मिला 1,18,000 का. कितने अमाउंट का चेक मिला? 1,18,000 का. अब पांडु अपने अकाउंटेंट को कॉल करता है, अरे मैंने अभी पेमेंट कर दिया, अब फिर से ITC ले सकते क्या? हाँ ले सकते. अगर आपने सुनो, आपको इनवॉइस मिलेगा. इनवॉइस मैंने पांडु को दे दिया. कैन ही क्लेम ITC? यस. उसने पेमेंट नहीं किया. 180 डेज पे पेमेंट नहीं आया. ITC रिवर्स. 190 डेज पे पेमेंट आ गया. रिकवरी एजेंट का कमाल. पेमेंट आ गया. आई कैन रीक्लेम द ITC. तो ये ITC अब क्लेम कर सकता है.
जब इनवॉइस गया आईटीसी लिया 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, वो खुद ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है और सीए ने उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुम नहीं करोगे तो इट इज नॉट डन, आपको इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टीज लगेगी, और दिस इज योर नॉट राइटली क्लेमिंग दैट आईटीसी, यू विल हैव टू रिवर्स इट। 190 डेज पे उसने मुझे पेमेंट कर दिया, कैन ही नाउ क्लेम द आईटीसी? यस, वेरी मच राइटफुली, अभी ही हैज ऑल राइट्स टू क्लेम दैट आईटीसी।